कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, बेशुमार अथाह अगनत अतुले। ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले, अगम अगोचर। सच साहिब मेरा नानक बोले, बुलाया तेरा अगम अगोचर। सच साहिब मेरा नानक बोले, बुलाया तेरा सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व संजी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते विराजमान, हलत पलत के रक्षक, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिबां दी अपर अपार कृपा बख्शिश रहमत होई। आप सरबत माई भाई गुरसिख संगतां गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे अमृत वेले दे दीवाना च हाजरियां भर के अपना मनुखा जीवन सफल कर रहे हो, वडभागे हो। गुरु गोदी का आनंद माण रहे हो। सतगुरां ने अपनी कदम बोशी बख्शिश की। आप जियां ने नितनेम आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने, नाल नाल सेवा करके लाहा लै रहे हो। उपरंत चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लड़ीवार कथा, गुर शब्द विचार नाल जुड़न का सुभाग समा भी आपां सारिआं नूं प्राप्त होया। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु की बात पा के सफल करन दा यतन करिए। सतगुरां तो जीवन जाच सीखिए। कल आपां 2 श्लोकां नूं विचारन दा यतन कीता सी, पर 54 नंबर श्लोक बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय।
ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। तो मन च आया कि इस श्लोक के एक बार फिर दर्शन किए जान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 53 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨ ਮੁਖਨੀ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾੜ ਪੀਵੈ ਪਨਹਾਰੀ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 10-15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੜੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਮਨ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਵਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਦ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।
परोपकार तो यही है ना, सेवा इसे नूं कहंदे आ। सिमरन तुसीं करना होवे ना, किसी भी जगह ते बैठ के कर सकते हो, किसी दूसरे की लोड़ नहीं। घरे बैठे हो, दुकान ते बैठे हो, गड्डी च बैठे हो, बिजनेस कर रहे हो, कदे भी तुहानूं लग रहा भी मेरे को 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का समा, ये नहीं सोचना भी सवेरे शाम मैं इशनान नहीं किया, हले इशनान करके बैठांगा, नहीं। जिथे भी समा लगता ये सौखा बड़ा है, उत्थे ही तुसीं 1-2 मिनट लिए ध्यान ला सकते हो, उत्थे ही गुरु साहब नूं याद कर सकते हो, उत्थे ही मन मंदिर दे नाल अपनी सुरत नाल भावें सिंह शहीदां मत्था टेक लो, हरमंदर साहब मत जेड़े भी गुरुद्वारा साहब की झलक पवे उत्थे ही मत्था टेक सकते हो। ये मैਡੀਟੇਸ਼ਨ इन्ना सौखा है और जिथे बैठे हो कर सकते हो। पर सेवा इस तरह नहीं होंदी। सेवा लई तां हो सकता रात नूं 12 वजे किसी नूं लोड़ पै जाए तो उहदे कोले चल के जाना पवे, सेवा इवें हुंदी है। सेवा लई किसी दूसरे की लोड़ हुंदी है, दूसरी जगह ते जाना पै सकदा, होर साधना की लोड़ पै सकदी है। सेवा का कंसैप्ट वो है। पर महापुरुष कहते हैं जे लोग बीमार हो गए तो चल के जाना चाहिए। तां ही गुरु नानक साहब ने जदों बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसाई, संसार नूं ध्यान ला के वेख्या संसार इन्ने बंधनां विच जकड़िया पिया, इन्ने जंजालां विच दुनिया फसी पई आ। धन गुरु नानक साहब ने सोचा भी इन्हां कोल चल के जाना चाहिए। सुल्तानपुर तो तुरे ने, माता सुलखणी नूं कहा सी लखां चोर ठग डाकू, वेख मैनू सुलखणीए किवें उड़ीक रहे ने, तेरे 2 पुत ते मेरे लखां पुत अड्डियां चक चक मैनू उड़ीक रहे ने। मैं उन्हां बंधनां विच फसिया होयां दे बंधन कट्टण वास्ते चलिया और उन्हां नूं बंधन कट्टण दा, बंधनां तो मुक्त होण दा रस्ता दिखाउण वास्ते चलिया। तो यह वैद का फर्ज है कि उहदे कोल आप चल के चलिया जाए। हुण तां परमात्मा आप आवे, इन्हां बीमारां दा उपाय कीतियां गल नहीं बन सकती। ये तो बंधन विच हन, क्योंकि बीमारी बीमारी च फर्क हुंदा है ना। मन का इलाज, आत्मा का इलाज तो है ही गुरु कोल है। जे किसी को डिप्रैशन होंदा वो नींद दीयां दवाइयां दे सकते हैं, पर फिर भी वो किसी हद तक इंसान नहीं उस बीमारी तो बाहर निकलता। पर सतगुरु पातशाह कोले आओ, इत्थे हर बीमारी का भावें मन की होवे, आत्मा की होवे, शरीर की होवे। तां ही असीं आनंद साहब विच रोज़ पढ़दे हां, दुख रोग संताप उतरे। दुख शरीर नूं लगदा है, रोग मन दे ने, संताप आत्मा दे ने। सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुन के इतने खत्म, तिन्ने ताप निवारण हारा। सो इसलिए सतगुरु पातशाह गरीब नवाज ने ये गरीबां दी, निमाणियां दी, नताणियां दी अरदास सुनते हैं। इत्थों तक कि हाथी नालों पहलां कीड़ी दी सुनी जाती है, हाथी दी भी सुनते आ, पर उदों जदों वो कीड़ी वर्गा हो जाए। तो कई जगह जो हाथी ते कीड़ी की उदाहरण आई ना बाणी च, हाथी नूं एक हंकार दे नाल तुलना दी गई, कीड़ी नूं एक निम्रता नाल तुलना दी गई। तो पातशाह कहते जो बंदा हाथी तरह हंकारी होकर बैठता जां हंकारी होकर अरदास करता नहीं सुनी जाती, जो कीड़ी तरह निम्रता विच आ जाता फिर उहदी अरदास सुनी जाती है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने अकाल उस्तत विच बचन कीते आ, हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे। कई बार इस तरह का हो जाता कि हाथी पुकार करे, उहदी अरदास पुकार सुनदियां कोई देरी हो जाए। चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है, चीटी भाव कीड़ी की पुकार पहले ही सुनी जाती है। निम्रता वाले दी जिन्हें अपना आप समर्पण करके अरदास की, दोए हाथ जोर करो अरदास, अपना आप समर्पण करके अरदास की, उन्हां दी पहला सुनी गई। जिन्हां ने हले अपने बल नूं भी कायम रखिया ते ओ बल अपने ताकत अपने ताण दे जोर ते जो अरदास करदे आ, जिवें शेर शाह सूरी आशीर्वाद लैण गया गुरु अंगद देव पातशाह कोल, पर वो आशीर्वाद तलवार कढ़ के लेना चाहता है। लैण आशीर्वाद गया तलवार दे जोर ते लै रहा। पातशाह कहंदे आशीर्वाद तलवारां दे जोर ते नहीं मिलदे, आशीर्वाद होए निमाणी टह पवां पूरे सतगुर पास। इत्थे निमाणे निताणे हो के अपना आप समर्पण करके आशीर्वाद मिलदे आ। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, अपना यतन कुछ नहीं कर सकता, कछु ना हो तो पाए। बेशक हाथी हाँ पर तेरे जम अगे बेवस हाँ। सतगुरु पातशाह
ਹੁਣ ਇਸ ਜਮ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੰਦੂਆ ਇੱਥੇ ਜਮ ਗਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗਏ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ। ਅੱਜ ਜਮ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਮ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਠੇਂਗਾ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਠੇਂਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਠੇਂਗਾ ਵੱਜਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਚਨਚੇਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਬਲਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮੂਆ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਮ ਜਾਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਨ ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਜਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਇ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਬਲ ਹੋਆ, ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੋ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਸਨ ਮਨ ਦੇ, ਤਨ ਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਲਾਮੀ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਨਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ
ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रहेले लोगों ने हराया, इन्हां दा राज भाग सारा कुछ खोलिया, उन्हें एक लास्ट वेखना चाहया कि इन्हां अंदर कोई अणख गैरत बची भी आ, कि कल मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं पैदा करनगे। उन्हां दे एक सरदार ने कुछ तैमूर खानदान दियां औरतां नूं बुलाया, अपने महलों विच उन्हां नूं कहा तुसीं नाच गाना करो। उत्थे चंगे शराब कबाब के प्याले चल रहे ने, संगीत चल रहा, वो नच रही ने। उन्हें अज उन्हों की अणख गैरत परखनी चाहिए भी इन्हों ने मन रूपी मन करके गुलामी कबूली है जां नहीं, किते कल कोई अंदर अणख गैरत जाग पे तो मेरा नुकसान ना कोई कर देन। उन्हें एक ड्रामा किया, कोल एक शरबत बना के रख लई, इदां दी बनाई जिवें शराब होवे। कोल एक उन्हें खंजर म्यान दे विचों कढ के अपनी छाती ते रख लिया। वार थोड़े जे समय बाद वो प्याला पींदा पूरा शराबी होने का नाटक कर रहा कि ये औरतों को लगे कि मैं पूरा शराबी हो चुकिया। कोल नंगी खंजर रखी है तो एक सौण का नाटक भी किया, उन्हें घराड़े मार रहा, बिल्कुल डुप्लीकेट कर रहा, सिर्फ उन्होंने अणख गैरत वेखण लई भी जे इन्हां च अणख होई ये तैमूर खान दे नाल संबंध रखदे, खानदान नाल संबंध रखदियां, फिर तां मेरे सराहणे पई खंजर चुकणगियां ते मैनूं कतल कर देणगियां। जे इन्हां च अज अणख गैरत पूरी तरह खत्म हो गई, मन करके इन्हां ने गुलामी कबूल कर ली, फिर मैनूं कोई डरन दी लोड़ नहीं है। उन्हें कुछ घंटे ये सारा नाटक करता रहा, शराब वो शरबत पींदा रहा, शराबी का नाटक होंदा रहा, सौण का ड्रामा करते रहे, कोल नंगी खंजर भी रखी, पर वो तैमूर खानदान दियां औरतां नचदियां रहियां, नाच गाना बंद होया चले गईयां। ते अज उन्होंने एहसास हो गया भी जिहड़ी अणख गैरत सी अज तैमूर खानदान विचों निकल चुकी आ, ये मानसिक तौर पर गुलामी कबूल कर चुकिया, हुण एक कमज़ोर हो चुकिया। जिहड़ा कमज़ोर हो जाए उस बंदे तो किसी नूं डर नहीं रहिंदा। इस तरीके नाल उन्हें इन्हां नूं परखना चाहया, पर सतगुरु पातशाह ने एडी बख्शिश रहमत साडे ते कीती, जिहड़ी मानसिक तौर पर साडे मन ने गुलामी कबूल कीती आ, वो भावें कर्म कांडां दी होवे। मन तो बिल्ली रास्ता कट जाए उस गल तो भी डर जाता है, मन तो तुरन लग्या किसी ने छिक मार दी वो तो भी डर जाता है, मन तो घरों तुरन लग्या पिछों किसी ने आवाज़ मार दी वो तो डर जाता है। मन से गुलामी है ना, घरों कोई दुध पी के घरों तुरना चाहे, जद कि ये सारे साइंटिफिक इन्हां दे मीनिंग निकलते आ, पर बंदा उहदे तो भी डरदा भी दुध पी के न जा कोई उपरी वाह ना तेनों चुंबड़ जाए। घर बनाउंदा बाहर नज़र बटू लाया जाता भी किसी की नज़र ना लग जाए, नाले खंड पाठ साहब करा रहा, मानसिक गुलामी है। इदां दियां मानसिक गुलामियां ने बंदे का जो मन इन्ना गुलाम कर लिया अपने बंधना विच। हुण इन्ने बंधना विच पए हुए बंदे नूं जपजी साहब सुन रहा है, पढ़ भी रहा है, सुखमनी साहब सुन रहा तो पढ़ भी रहा है, गुरु घर आउंदा मत्था टेक रहा, सेवा भी कर रहा, लेकिन मन विच किते ना किते डर, ये भै एक संसा एक भरम बनिया रहिंदा कि मैं अज फलाना उपा भी करना, मैं अज आ काम भी करना, किते ये ना होवे वो काम ना कीता ते काम ही ना अधूरा रह जाए। जिहड़ी दूसरे होर धर्मां मानसिक गुलामी की आ, कल्ला शरीर गुलामी नहीं, मन ने जिन्ने समाजिक रिश्तियां नूं अपना समझिया वो सारे टुट गए। और मानसिक तौर पर जिहड़ियां ने धार्मिक तौर पर होर धर्मां की आस्था लई बड़े इस दुनिया ते आए हुए, जिन्हां ने रब होने का ड्रामा किया, अपने आप नूं रब बना के पेश किया, इन्हें उन्हां नूं रब समझ के उन्हां दी गुलामी भी प्रवान की, पर उन्हां चों रब तां है कोई नहीं सी। उन्हां दीयां गल्लां विच आया, मन च गहरा प्रभाव पै गया, मन इन्ना गुलाम हो गया कि इस मन ते हुण छेती कीतियां कोई घंटे 2 घंटिਆਂ नाल असर नहीं हुंदा, कोई महीने 2 महीनों नाल असर नहीं हुंदा। गुलामी इन्नी कबूल बैठा, इन्ने मोटे संगल पए होया, हुण वार वार आवे, रोज़ आवे, हर वेले आवे, तां किते वो गुलामी दीयां जंजीरां कट्टियां जांदियां ने। पर सतगुरां दा पर उपकारी सुभाग है, महाराज साहब ने साडे जीवन विचों हर तरह की गुलामी कट्टी है, और हर तरह की गुलामी कट्टण दा सानूं रस्ता भी दिखाया। मन जीता जग जीत,
सानू इस मार्ग दे पांधी बनाया। भाई मन नू जित, मन किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। मन तेरे कहने विच आ, मन तेरे वस विच आ ना, तू सारे संसार नू वस च कर सकदा है, पूरी दुनिया नू जित सकदा। जे तेरा मन तेरे कहने विच नहीं, फिर संसार ते हुक्म चला के की करेगा। औरंगजेब बादशाह वर्गे अंत वेले इसे गल दी चिंता करके रोए कि साडा मन साडे कहने च नहीं। देश उत्ते दा हुक्म चला लिया पर मन उत्ते हुक्म नहीं चल रहा। महाराज साहब ने प्रथम मन प्रबोधो अपना पछ है अवर रिझावे दे पांधी सानू बनाया। यह सबक सानू सिखाया गया। जिस दिन मन कमजोर हो गया उस दिन जितया होया भी हार जाता है। जिस दिन मन बलवान हो जाए उदे हारिया होया भी दोबारा जित जाता है, क्योंकि मन का बड़ा वड्डा रोल है। कबीर साहब नू जिस तरीके नाल उस वेले दे राजे ने तसीहे दिते, तन नू तसीहे दे रहा, लेकिन कबीर साहब ने वचन किया, मन ना डिगे तन काहे को डराए। भाई तू जिन्ना मर्जी मेरे तन नू तसीहे दे ला, मेरा मन नहीं डुला सकता। मेरा मन तेरी कोई भी गुलामी प्रवान करने वास्ते, कबूल करने वास्ते प्रवानगी नहीं देगा, क्योंकि मेरे मन विच परमात्मा का नाम वसिया होया। मेरे मन ने परमात्मा के नाम नाल संबंध जोड़िया होया, रब नाल संबंध जोड़िया होया। तेरी गुलामी नहीं प्रवान करेगा। चरण कमल चित रहो समाए, क्योंकि परमात्मा के चरना कमलों नाल मेरा चित जुड़िया। तू मेरे तन नू तसीहे दे सकदा। हुण किसी का कोई चोला पाड़ दे, बंदे नू की फर्क पैण लग्या, उहदे शरीर नू की फर्क पैण लग्या, चोला ही पाड़ रहा ना। धर्मी लोगों ने शरीर नू अपना चोला समझिया। वो कहते इस चोले नू आरे नाल चीर, इस चोले नू पानी दियां देगां चों वाल, इस चोले दा बंद बंद कट दे, इस चोले नू रून च लपेट के साड़ दे, कोई फर्क नहीं पैना। कि भाई मती दास नू जपजी साहब तो मुनकर करने वास्ते लालच, तसीहे, डरावे, धमका दिता नहीं होएगा? पर नहीं, मन ना डिगे तन काहे को डराए, मती दास ते कोई असर नहीं। भाई दयाला जी नू पानी दी देग कोल खड़ा के की उन्होंने डरावा नहीं दिता होएगा कि तेनू आ पानी दी देग चों बालिया जाना, जपजी साहब छड्ड दे, गुरु तेग बहादुर साहब नू छड्ड दे, कोई परवाह नहीं की। भाई सती दास नू डराया होएगा, पर वो इन्हां बंधना विचों निकल चुके आ, क्योंकि उन्हां कोले आत्मक बल होआ, बंधन छुटे। इन्ना आत्मक बल आ चुकिया सिमरन करके, इन्ना आत्मक बल आ चुकिया बाणी पढ़ के, उन्हां नूं आ छोटे छोटे डर ही नहीं लग रहे। इन्हां तो उन्हां दा मन डर ही नहीं रहा। सतगुरु पातशाह कहंदे ने कि भाई जिंदगी दे विच सहारा मजबूत लभी, ये बंधन एवें नहीं कट्टे जाते। बंधन कट्टण दी समर्था रखण वाला होवे कोई, उही तेरे बंधना नूं कट सकदा। हाथी ने किसे होर अगे अरदास नहीं की कि मेरा अज बंधन कटो, उन्हें परमात्मा अगे अरदास की। शायद उन्होंने भी समझ होवे कि मेरा बंधन जे अज कोई कट सकदा तां परमात्मा कट सकदा। कल मैं किसे अध अधूरे अगे अरदास करा, ये ना होवे मेरी जान ही जाती रवे, इस बंधन तो मुक्ति ना मैनूं मिले। अज इंसान के बंधन इसे करके नहीं कट्टे जा रहे, क्योंकि ये बंधन कट्टण वास्ते उन्होंने अरदासां करदा है, उन्होंने पुकारा करदा, उन्होंने अगे नक रगड़दा जिहड़े आप अनेकां बंधनां च फसे होए आ। वो किवें बंधन कट देणगे? पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब पातशाह बड़ी तसल्ली नाल कह रहे आ, बड़ा विश्वास दवा रहे आ, भाई गुरु ग्रंथ साहब कोल आ, गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच बैठ, धन गुरु नानक दे पातशाह दे चरनां नाल जुड़। जिहड़ा सिख बन जाए ना, सतगुर सिख के बंधन कट है। सतगुरु अपने सिख दे बंधन कट दिंदे ने। बंधन कोई होवे, शरीरक होवे, मानसिक होवे, आत्मक होवे। ताई महाराज ने कहा, तू मेरो मेर परबत स्वामी, तू सहायता किहदी मंगनी आ, तू ओट किहदी लैनी आ, तू अरदास किहदे अगे करनी आ। धन गुरु तेग बहादुर साहब यही समझा रहे अज, अरदास कर लेकिन किहदे अगे? ओट आसरा लेना पर किहदा लेना? तू मेरो मेर परबत स्वामी, ओट कही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी अब ही। पातशाह मेरा आसरा तो तू ही आ, तेरे तो बिना कोई होर नहीं। तेरे नाल जुड़ के मेरे मन नूं सुख मिल गया, मेरा मन सुखी हो गया। रब दा सहारा लैके तुरन वाला बंदा कदे डोलदा नहीं। सतगुरु पातशाह ने बड़े दृष्टांत दिते। सिख कौम ते बड़ियां हनेरियां झुलियां ने, पर उन्होंने आत्मिक तौर ते किसी की गुलामी नहीं प्रवान की। लोग तुरे जा रहे आ, अचानक झाड़ियां हिलियां। एक कहता भी झाड़ियां हिल रही किते सिख ना बैठे होण।
दूसरा कहता नहीं नहीं सिख थोड़ी आ, सिखां दा तां नामो निशान ही खत्म हो चुकिया। सिੱਖੀ ਤਾਂ बस हुण थोड़े टाइम बाद आपां अजायब घरां विच ही सिखां नूं वेखिया करांगे भी सिख इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इस धरती के उपर सिख नहीं नज़र आएगा। सिੱਖੀ का खुरा खोज ज़करिया खान ने मिटा दिता है। झाड़ियां उल्ले बैठे सिੱਖੀ ने, सुन लिया उन्होंने। हुण बल होआ, बंधन छुटे। उन्हां कोले किन्ना बल है, किन्नी ताकत है, किन्ना जोर है, किन्ने अंदरों वो बलवान हो चुके ने, ताकतवर हो चुके ने कि साडे लिए गल कही जा रही है। बंधना तो मुक्त वो आज़ाद बिरती दे सुतंत्र सोच दे मालक गुरसिख झाड़ियां तो बाहर निकल के आके राह रोक लिया। कहते की कह रहे हो, सचो सच दसो साडी इस इलाके विच संसार विच चर्चा की चलदी आ। कहते आही चलदी आ जिहड़ी तुसीं सुणी आ भी सिख तां खत्म ही हो गए। कहते सिख खत्म हो गए किवें हो सकदा? दोवां जणियां ने नाका ला लिया, चिट्ठी लेके भेजी ज़करिया खान नूं। बड़े मजाकिया हास रस विच चिट्ठी लिखी सी, जाके कह दिओ भाबो खानों नूं। भाबो क्या उन्होंने बड़ा मजाकी ढंग में चिट्ठी लिखी और दोवां जाणियां ने टैक्स ला के एहसास करा दिता सिख खत्म नहीं होए। ये आत्मक तौर पर इन्नी ताकतवर कौम है, इन्हां दा तां राज भाग है। जे राज भाग है तां ही टैक्स लै रहे हैं, लोग टैक्स दे के जा रहे हैं उत्थे। दो जणे ने बल होआ, बंधन छुटे। जदों ताकतवर हुंदा इंसान फिर वो भावें ज़करिया खान दे बंधन किसे दे भी होण वो परवाह नहीं करता। वो सतगुरु ते भरोसा रख के चलण वाला हुंदा है, जिन्हें मानसिक गुलामी कबूल कर लई। वड्डे वड्डे लोग जिहड़े आ फिर वो जित्तियां होईयां जंगां भी हार जांदे आ। पर सिख नूं पातशाह ने मानसिक हुण 9 जामे जिहड़े आ इन्हां ने मानसिक तौर ते तैयार कीता ना। 9 जामिया ने आत्मक तौर पर तैयार किया, 9 जामिया ने अंदरों बलवान किया। जिमें एक नौजवान किसी महात्मा को गया, कहता जी मैनू अपना सेवक चेला बनाओ। कहते बन जा। 5-7 साल लंघे, कहता जी मैं नहीं तुहाडे कोल रहना। कहते की होया? कहता कोई पते की गल तो दस ही नहीं रहे तुसीं। सारा दिन आ काम कर ला, वो काम कर ला, इधर चलिया जा, उधर चलिया जा, आही कामां चलाई रख दो। कोई मैनू नुकते की गल, कोई पते की गल, कोई गुरमत ज्ञान की गल तो दस नहीं रहे। महात्मा कहते भी कई बार जिस भांडे च वस्तु पाउणी होवे वो भांडा साफ करने लई टाइम लग जाता है। असीं भी देखो दोजी तो दुध पवाउने आ ना, कदे दोजी नूं थोड़ा कहा भी भांडा तू भी साफ ही करके ले आई, जां साडा भांडा भी तू साफ कर दे। भांडा तो असीं आप साफ करना ना। दुधी हाँ वो एक जिम्मेवारी है, दुध पाउण लग्या भांडे च निगाह जरूर मारदा भी साफ है। जे माड़ी मोटी कमी होवे कह दिंदा भी इनू साफ कर ला दोबारा, पर उन्हें नहीं करना, वो कहेगा साफ करके लिया। असीं आ हिरदे दा भांडा साफ करदे हां और आप ही तसल्ली दे लैंदे भी साफ हो गया, पातशाह च वस्तु टका। बाबे लहणे नूं महाराज ने बाटा कड्ढण लई कहा ते उहनूं साफ करन लई भी कहा। जदों बाटा साफ किया महाराज कहंदे लहणा साफ नहीं होया, दोबारे कर। फिर साफ किया, हले भी साफ नहीं। बाबे लहणे ने किन्नी रूह नाल साफ किया होएगा। कहंदे हुण साफ हो गया, मैं इहदे च वस्तु टकाउणी आ, हले थोड़ा जिहा समा होर सेवा कर, माड़ा मोटा जिहड़ा लेप सेवा वो भी निकल जाए। अज असीं भांडा अपना आप ही साफ करके कहता महाराज साफ हो गया, लो इह च दात टकाओ। गुरु नूं तो पुछ के वेख लईए, तुसीं दसो साफ होया कि नहीं होया। भांडा हच्छा सोए जेत सुभाव सी, गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए भांडा हच्छा होए सी। गुरु कोल आएगा, गुरु शब्द नाल, सेवा नाल, सिमरन नाल, सतगुरु जुगती दसणगे, ये भांडा उवें साफ होना है। असीं कई बार 2-4 महीने मत्था टेक के कहने भांडा साफ हो गया। हुण जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, इन्ने जन्मां दे विच पाप विकार इकट्ठे करी फिरदियां, इन्नी जल्दी किवें खाली होएगा? हो जाता। निराश नहीं होना कि पता नहीं साडा होना कि नहीं। महाराज कहते मैं इंतजार च बैठा, तू भांडा साफ करके लिया, मैं च दात टकावां, मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं बंद कर लग्या। जदों भांडा साफ हो गया तो उदों ही आ जाई। मैं दात रखी आ, थाल विच तैनूं वस्तु पई, वो दात तेरे लिए आ, मैं तेरे भांडे च टका देंगा। वो नौजवान ने कहा जी मैं नहीं तुहाडे कोल रहना, कोई नुकते की गल। वो कहंदे चल कोई गल नहीं, तैनूं ज्ञान की गल भी दसांगे, पर आपां कल खूह ते चलना। खूह ते चले गए। महात्मा कहते भी इत्थे खड़ के सिर्फ तू वेखना बोलना नहीं, आ वड्डी बाल्टी नूं मैं खूह विचों पानी कढ़ के भरना, जदों भर गया ये भांडा, ये बाल्टी भर गई, तू उदों बोलना, जिन्ना चिर भरदी नहीं उन्ना चिर नहीं बोलना। कहंदा जी ठीक है, 7 वचन तेनूं मैं फिर ज्ञान देंगा। महात्मा बाल्टी छोटी बाल्टी लमकाउंदे आ खूह दे विच, जदों वड्डी बाल्टी च उलटाउंदे आ 2-4 तुपके ही पैंदे आ।
वो बड़ा हैरान होया देख के। उन्होंने फिर बाल्टी डुबोई, फिर कड्डी, 2-4 दुबके फिर पै गए, फिर बाल्टी डुबोई, फिर कड्डी। ओ तो हुण सबर दा बन टुट गया। कहंदा महापुरखो, जिस हिसाब नाल तुसीं बाल्टी भरन लगे हो, भावें सारी जिंदगी लगे रहिए, नहीं भरनी है। कहंदे क्यों नहीं भरनी? खूह च पानी नहीं, नक्को नक खूह नाल जिहड़ा पानी नाल खूह भरिया होया, बाल्टी अपने कोल आ, रस्सी अपने कोल आ, जीज पाउणा भांडा वो अपने कोल आ, ते दोवें जाणे जदों मैं थक गया तूं भरन लग पई ते भरांगे तां सही ना, भरना क्यों नहीं? कहंदा जेड़े भांडे नाल पानी कढ रहे हो उस भांडे दा थल्ले ही नहीं, उस भांडे च थल्ले ही नहीं, किवें तुसीं इह बाल्टी नूं भर लोगे? कहंदे बस आई तां तेरे सवाल दा जवाब देण लग्या। इत्थे रब ने, गुरु ने, परमात्मा ने गुणां दा खूह भर के रखिया होया, पर जेड़े भांडे च असीं पवाउणा चाहुंदे उहदे थल्ले ही कोई नहीं लग्या। असीं तां किते सिमरन करदिआं माड़ी जी बख्शिश दी झलक पैंदी आ, ये नहीं कि कल्ली किसी विशेष लोकां नूं पैंदी आ, किसी नूं भी पै सकदी आ। कोई बाणी दा धर्म है, इहने तां रस देना ही आ ना। मिश्री का धर्म आ, कोई भी खावे वो मिठी आ, डॉक्टर रोके गल वखरी है। गुरबाणी का धर्म आ, कोई पढ़े, कोई गावे, को सुने, कोई गावे, कोई इन्हें अपना आनंद देना। पर असीं भांडे थल्ले नहीं ना, उस वेले फटाफट दस्सण दी कोशिश करते हैं, रात मैनू इवें दसिया, रात मैनू इवें लग्या, रात मैनू आ लग्या, कि लोकां नूं पता लगे तो मेरा सत्कार वधे। हाजमा नहीं, इनू अंदर संभालण वास्ते हुण जिन्नी कीमती चीज़ होवे, भांडा भी उन्ना ही कीमती हुंदा। परमात्मा का नाम टिकाउण लई हिरदे नूं बड़ा कीमती बनाउणा पैंदा है। इस हिरदे नूं बड़ा ही पातशाह कहंदे ने संभाल के रखना पैंदा। तू गुरु परमात्मा का ओट आसरा लै, सहारा ओ बना जिहड़ा आप ना डोलदा होवे। प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। बल होआ बंधन छुटे, सब कुछ हो तो पाए। बल पैदा हुंदा सिमरन विचों, सारे बंधन टुटदे ने और सारे उपाय जिहड़े ने वो सार्थक हो जांदे आ। हुंदे उदों जदों गुर पूरा भेटियो वडभागी। मनै भया प्रगासा गुर पूरा मेरी राख लई। सतगुरु पातशाह कहंदे ने अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई निवरे दूत दुष्ट बहराई। गुर पूरे का जपया जाप कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर 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 सुख पाया। चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। मारे कहंदे सिमरन कर, पर सिमरन किहदा करना? प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। उस उच्चे का सिमरन करना जिहदे तू सिमरन करदा उन्हां नूं आप नूं बड़े बंधन पए होया, तां ही तां तेरा कुछ बन नहीं रहा। अज देहधारियां कोल जाके लोग इसे करके खुआर हुंदे आ ना, क्योंकि टेक गलत रख ली। विश्वास च कमी नहीं, भरोसे च कमी नहीं, शरधा च कमी नहीं, पर जिहदे ते शरधा रखी आ। हुण मिरग वर्गी शरधा बना लई, मिरग रेते नूं पानी समझ के दौड़ी जांदा है, अखीर प्यास नाल तड़फ तड़फ के मर जाता है। आही हाल बंदे दा हुंदा। ये खाली खूहां कोलों कुछ लेना चाहुंदा है, ये अधूरियां कोलों कोई पूरी गल सीखनी चाहुंदा है, ये बंधनां विच पिया होए लोकां कोल जाके अपने बंधनां दी बंद खलासी कराउणी चाहुंदा। बंधन कट्टे जांदे आ, भावें संसारक बंधन होण, पर गुरु तेरा गुरु हरगोबिंद साहब वर्गा होना चाहिए। बंधन कट्टे जांदे इत्थे। पातशाह गए आ ग्वालियर के किले चो, तां ही बंदी छोड़ नाम पिया ना। यदा मतलब ये नहीं कि सानू अज ग्वालियर के किले जाना पएगा फिर बंधन कट्टे जाने आ। महाराज कहंदे ये तां मैं एक एग्जाम्पल दित्ती, एक दृष्टांत दिता। जे गुरु संसार उत्थे भी लोग जन्म मरण की लड़ाई लड़ रहे आ, क्योंकि उस किले में जेड़ा जांदा सी वो मर के बाहर आउंदा, जिउंदे जी नहीं सी आउंदा। सतगुरां ने वो मौत नाल लड़ रहे लोकां नूं जिंदगी दे के बाहर कढिया, ते अज विकारां नाल लड़ रहे लोकां नूं पातशाह कहंदे मेरे कोल आ, मैं सिमरन दे नाम दी दात दियांगा, तेनू तेरा मन इन्ना बलवान हो जाएगा। निहत्ते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो। इहो जी सतगुरु कंड ते शब्द दी थापी देणगे तो ये निहत्ते पंज जवान काम क्रोध लोभ मकार तो जित जाएगा। तेनू नशियां दे बंधनां तो मुक्त कर देणगे, विकारां दे बंधनां तो मुक्त कर देणगे, वासनावां दे बंधनां तो मुक्त कर देणगे। पर गुरु समर्थ होना चाहिए। धन गुरु नानक देव पातशाह नूं सिद्ध पुछदे आ, पातशाह तेरे कोले है आसरा की होवे? सहायता किहदी मंगणी आ? सहायता मंगो, पर किहदी मंगणी आ? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह भंगाणी दा जंग जितदे आ। जदों बल आ जाए, ताकत आ जाए, बंधन टुट जाण, उदों उस बल नूं अपना बल नहीं समझना।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ मैं ताकतवर हो गया, मेरे को ताकत आई तां। उदों ये कहना नानक सब कुछ तुमरे हाथ में। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਦਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। नहीं मैं कौन सी इहनूं जित जांदा, मेरे वस की गल नहीं। जदों परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कह रहे आ, मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ पर चुर कर बेको साजा, जहां तहां ते धर्म चलाए, कबूत करन ते लोक उठाए। जाओ धर्म चलाओ, लोकां नूं उठाओ, माड़ियां ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में। तेरी सहायता तेरी कृपा होवे पातशाह, तां ये सब कुछ होना, तेरे तो बिना नहीं। सिद्धा नूं गुरु नानक ने पूछया, इत्थे किवें आए? घर परिवार बच्चे पुत्र धीआं नूं छड्ड के इत्थे किहड़ी ताकत ले आई? इत्थे तां कोई पहुंचदा ही नहीं। धन गुरु नानक साहब ने कहा, हौं जपिया परमेश्वरो, सहारा काहदा होवे? परमात्मा दा। सहारा किहदा लैना? आद सच जुगाद सच का सहारा लेना, एक ओंकार का सहारा लेना। गुरु नानक साहब उस परिपूर्ण परमात्मा का सहारा लेंदे आ, सुमेर पर्वत ते पहुंच जांदे आ। जिथे जाना ही औखा है, जिथे पहुंचना ही औखा है, ते ओ बंधना तो मुक्त ने, क्योंकि परमात्मा नाल उन्हां दा मिलाप होया होया। बंधना विच पए महात्मा बुद्ध दे उपर परिवार दा बंधन सी, घरवाली दे मोह दा बंधन, पुत्र राहुल दा बंधन गए। घरों तुरन लगदे आ, फिर वापस मुड़ जाते आ। पुत्र दा मोह है, घरवाली दा मोह है, फिर गेट ते आउंदे आ, फिर वापस 3-4 बार इदां ही होया। अखीर अद्धी रात नूं छड्ड के सुत्ते पिया नूं गए। गुरु नानक साहब ने भी नहीं किया। चिट्टे दिन गए, उत्थे सस सहुरा भी खड़े आ, माता पिता भी खड़े आ, उन्हां दी धर्म सुपत्नी खड़ी आ, दोवें साहिबजादे खड़े आ, भाईया जय राम खड़े आ, मात नानकी खड़े आ, सिख संगतां खड़ियां ने, चोरियों नहीं गए। और इहो जे किसे बंधन करके ये नहीं होया भी थोड़ा जा दूर गए फिर वापस आ गए बच्चों नूं मिलण। 8.25 साल की पहली उदासी है, कोई व्हाट्सअप, कोई फोन, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। तो गुरु नानक साहब की चलो गल वड्डी आ, भाई मरदाना जी नाल भी घर की कोई गल नहीं कोई, वो भी किन्ना बंधना तो मुक्त महाराज ने कर लिया। किसे बंधन ने भाई मरदाने नूं भी नहीं रोकिया। एक बार कहण ते वो भी चल पिया। अज असीं अमर छकण की गल होवे ना, किन्ना कुछ ही सामने अखां सामने आ जांदा। हले पुत्त दा विआह करना, फिर शराब कबाब किवें चलेगी? हजे पोता विआहना, मां शराब किवें चलेगा? जे हुणी अमर छक लिया, जे हुणी अमर छक लिया फिर उधर भी मत्था टेकदे, उत्थे किवें जावांगे? हले आ भी काम करना, वो भी काम करना। किन्ने बंधन सामने आ जांदे आ अमर छकण तो पहला। सतगुरु ये सारे बंधनां नूं भाई कट दिंदे आ। जिहड़ा गुरु साहब दे चरनां विच आ जाए, धन गुरु अर्जन देव पातशाह बंधना तो मुक्त ने। उत्थे बंधन डराउण वास्ते बड़े पैदा किए गए, ततियां तवियां, पानी च देगां, रेत गरम, बड़ा कुछ मारे, कहते कोई परवाह नहीं। अंदरों आवाज की आई, तेरा किया मिठा लग गया। 9वें पातशाह के सामने बड़े बंधन, सिखां नूं सामने शहीद किया गया। खरे गुरु तेग बहादुर साहब डरी जान। महाराज ने चिट्ठी ते स्नेहा, पता अपना चढ़दी कला का स्नेहा लेके भेजा, औरंगजेब मेरी सरफरोशी का हसर की नहीं होना, मौत का फरिश्ता बन के भी तैथों जी नहीं होना। इन्ना खून पी के भी मैनू प्यासा लगता है, मैं इन्ना खून बहावांगा ते इत्थों पी नहीं होना। सतगुरु पातशाह तो इउं लगदा जिवें गुरु तेग बहादुर साहब शहीद जमा करा के गए हुण पंथ कोल। असी पूंजी जमा कराउने ना भी औखे वेले कढ लांगे, अज इउं लगदा भी जिवें शहीद जमा कराए हुण पंथ कोल। जदों किते पंथ नूं लोड़ पैंदी आ, जिन्हां लोकां तो उम्मीद नहीं हुंदी, वो सिर वार जांदे आ। तो लोग कौम हैरान हो जाती है भी ये तो रिक्शा चलाता सी, ये तो दिहाड़ी नाल गुजारा करदे, ते तां रोटी मसां पकदी, किवें इन्ना जज्बा किवें आया? क्योंकि पातशाह शहीद दे के गया, कौम लई जमा करा के गया। जदों जदों लोड़ पैंदी आ, औरंगजेब तू खून पीण वाला बन, सिख धर्म तैनूं खून की कमी नहीं आउण देगा।
कोई डर नहीं आ। बल होआ बंधन छुटे, सब कुछ होत उपाए। जदों सतगुरु रहमत करदे आ पर आसरा उस परमात्मा ते होवे। भगत रविदास दी जित हुंदी आ, पालकी च बिठा के लिजाया जांदा। लोग भगत रविदास दियां जय जयकारां कर रहे आ, वो कहंदे मेरी जय जयकार ना करो, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छतर, उस गरीब नवाज परमात्मा दी जय जयकार करो जिन्हें अज रविदास दी लाज रख लई है। वो अपनी जय जयकार नहीं करा रहे, वो सतगुरु पातशाह परमात्मा दे उपर मान कर रहे ने। और मैं बेनती करा, एक बचन तुसी गाहे बगाहे तुहाडी रसना नूं छूंदा है, हर रोज़ छूंदा, दो वार छूंदा, कन्नां नूं भी छूंदा। पर अज गुरु साहब किरपा करन किते वो शब्द मन नूं छू जाए। ए मन मेरिया तू सदा रहो अरनाले, शब्द तुसी बड़ी वार सुनिया। सतगुरु कह रहा मना गुरु दे अंग संग रह, गुरु नूं अंग संग रख, गुरु दे नाल लग के रह। मन बड़ा शरारती है, कहता गुरु नाल रवांगा फायदा की होएगा, गुरु नाल रहण दा फायदा दसो की होएगा। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। कहता फायदा, कहते दुख सब विसारना, बल होआ बंधन छुटे। गुरु नाल रहण दा फायदा तेरे सारे दुख खत्म, जेड़े दुखां दे बंधन आ ना वो खत्म हो जाणगे। दूसरा अंगीकार वो करे तेरा, अंग संग रह के तेरे कारज सिरे लाएगा, कारज सब सवारना। यह भी बंधन बड़ा वड्डा है। तां मैं तेनू नाल रहण लई कह रहा, क्योंकि सबना गल्लां समर्थ स्वामी, जिन्हां ते तू टेक रखी है ना वो सारियां गल्लां विच समर्थ नहीं। जिहदे नाल मैं जुड़न वास्ते कह रहा वो सारियां गल्लां विच समर्थ है। सबना गल्लां समर्थ स्वामी, सो क्या मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सतगुरु पातशाह कहंदे आ भाई उस परमात्मा नाल जुड़, ओहदे नाल जुड़ के रह जेड़ा सारियां गल्लां विच सर्ब कला समर्थ है, ते जेरे सारे कम्मां नूं सतगुरु पातशाह कहंदे ओ सार्थक करन वाला है। सतगुरु रहमत करन, गरीब नवाज आप विच वरतण। धन गुरु अर्जन देव पातशाह अरदास करनी दस रहे, उस परमात्मा अगे जदों बंधन पै जाण अरदास कर। अरदास विच कह मोहे निर्गुण राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। उन्होंने तो औगुण भी गिण दिते, मंच बखादी एक गरीबा राखो राखण हारै, खेद करे और बहुत संतावै, आयो शरण तुहारै। पातशाह सी तेरे चरनां विच आया, हुण सारे बंधन कट दिओ। और जदों ओहदे बंधन कटे जाण, जदों अरदास उस दर ते प्रवान हो जाए, उदों पुठियां भी सिद्धियां पै जांदियां ने। महाराज साहब का एक बचन है, गुरु तेग बहादुर साहब का ही, अब अदुष्ट बात ते भई सिधरी, जेड़े पुठे काम आ ना उन्हां चों सिद्धियां पादा। रब की किरपा ही ये हुंदी आ, जिन्हां नूं लोग नफरत करदे आ प्यार करन लग पैंदे आ, दुश्मन उन्हां दे मित्र बन जांदे आ। जेड़े उन्हां नूं माड़ा उन्हां बारे सोचदे आ वो चंगा सोचण लग पैंदे आ। जेड़े कल किसी गिणती विच नहीं समझदे सी, अज उन्हां नूं उच्ची थां बिठा के सत्कार देण लग पैंदे आ। दूत दुष्ट सजनई, महाराज साहब कहते अंधकार मह रतन प्रगास्यो मलीन बुद्ध हश नहीं। जदों गुरु की रहमत होवे पाई आ, मलीन बुद्धि दुरमत वाली भैड़ी मत इन्नी हच्छी हो जाती आ, जिहदी कल कोई बात नहीं सी पुछदा, जदों सलाह लैण आ रहा। बल होआ बंधन छुटे, सब कुछ हो तो पाए। सारे ही जेड़े बंधन ने टुट जाते ने, सारे उपास सार्थक हो जाते आ। सतगुरु पातशाह कहते ने सुन अंधा कैसे मार्ग दे, किसे सुनिया सी भी अन्ना बंदा मार्ग मंजिल ते पहुँच जाएगा, तुर पाएगा वो, पर तुरदे ने जे वो वल हो जाए। किसी ने सुनिया सी कि कोई गूंगा भी विष्णु पद गा लेगा, गा लेंदे आ जे ओदी किरपा हो जाए। ये गुरु की किरपा नाल, परमात्मा की रहमत नाल सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लियो ओढ़ ने बहावै। कहाँ बुझार तो बूझै डोरा, निस्कैया तो समझै भोरा। कहाँ विष्णु पद गावै गुंग, जतन करै तापी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, पिंगल पर्वत पार परे। किड्डियां आश्चर्य बातां ने। सतगुरु जी ते किरपा करन, पिंगलियां नूं पहाड़ां ते चाड़ दिंदे आ, मूर्खां नूं एडे चतुर भगता बना दिंदे आ, गीता दे अर्थ कर जांदे आ। और अर्थ एडे कमाल दे, लाल चंद वर्गियां नूं सिख बनना पै जांदा। महाराज साहब कहंदे आ नहीं हो तू उस गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी किरपा तरे परे। हुंदा सब कुछ तेरी किरपा नाल है। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई, ओथे भी उही वसदिया जिन्हां दे बंधन खत्म हो गए।
अपने सेवक की आपे रखै आपे नाम जपावै, जो जो काज कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल होए आवे। जदों सतगुरु एवें आके अपने सिखां दे काज नेड़े सवारदे, उन्हां दे सवरदे ਜਿਹੜੇ बल होआ बंधन छुटे। सब कुछ हो तो पाए। महाराज साहब कहते आ हर जन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सा मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। जदों इहां उहां सच होण लग पए, जो मंगीए गुरु तो मिलण लग पए, उन्हां नूं मिलदा उन्हां दा ही सच है जिन्हां दे बल होआ बंधन छुटे। सब कुछ हो तो पाए। जिन्होंने कल कोई उपाय नहीं सी सोचता, अज इन्ने उपाय उन्हां दी जिंदगी दे विच सतगुरु पातशाह ने रहमत कर दी है। जिन्हां ते गुरु की कृपा वरते भाई वो हनेरे विच भी राह लभ लैंदे आ, जिन्हां ते गुरु कृपा करे वो मिट्टी विचों हीरे लभ लैंदे आ। ते आओ सतगुरु पातशाह दे चरनां च अरदास करिए, महाराज साडे भी रब्बी कृपा साडे जीवन ते कर, साडा भी ये जीवन अंधकार विचों निकल के तेरे दर प्रवान होवे। इन्ने बंधन जिहड़े पए होए ने ये कट्टे जाण, और जदों बंधन कट्टे जाण फिर जीवन च तबादला आउंदा है, चेंज आउंदा है। चेंज की आउंदा है? उदों एक निमरता जन्म लैंदी आ। जदों बंधन मुक्त होंदा ना इंसान, ना होण वाले काम, असंभव काम जदों संभव हो जाते आ, फिर निमरता अंदर उपजदी आ। फिर निमरता दे विचों जिहड़ा बचन निकलदा उहनूं गुरु तेग बहादुर साहब इउं दस रहे हन, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। फिर वो ये नहीं कहता बल मेरा है, वो कहता पातशाह सारा कुछ तेरे हथ विच है, तू कृपा कीती, तू सहायता कीती, तू मेरे वल होया, तू मेरे ते रहमत भरिया हथ रखिया, तां अज मेरी जिंदगी दा आनंद बदल गया। मैं सतचित आनंद स्वरूप दा वासी बन गया, मैं बेगमपुरा शहर को नाव दा वासी बन गया, क्योंकि तेरी रहमत हुई। सतगुरु कृपा करन। आओ जीवन विच रब्बी विश्वास पक्का करिए, सतगुरां दे चरनां ते भरोसा बनाइए, तां कि असीं भी बंधनां तो मुक्त हो के अपना ये जीवन लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दे भागी बन सकीए जी। इन्नियां बेनतियां प्रवान, तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सज्जण आसीसड़ियां जो होवै। साहिब सो मेल आओ आखिरी पंक्तियां दा पाठ श्रवण करके समाप्ति करिए जी। बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होते उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहिब रामकली महला ती।